to multi-programming and multitasking. This is very important concept. तो I hope multi-processing सबको clear है. Multi-processing means more than one processors, many processors. और यहाँ पर हमने अलग अलग फॉर्म्स भी देख लिए. इट कैन बी आइदर इन अ सिंगल मशीन एंड इवन क्लस्टर्ड सिस्टम्स में हमने पहले सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया. किसी सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर भी हो सकता है और किसी सिस्टम के अंदर multiple processors भी हो सकते हैं. They all are connected with one another. So such systems are also known as clustered systems, and they also falls in the category of multi-processing systems. Now moving on to multi-programming. So multi-programming and multitasking are two other terms which are used in the concept of modern operating system. तो क्या है multi-programming? नाम से ही पता चल रहा है. Multi means many and programming means programs. So many programs, तो कहाँ पर स्टोर करने हैं many programs? तो ये पिक्चर देख के हमें बड़ी इजीली क्लियर हो जाना चाहिए कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोग्राम्स को हम जॉब्स भी बोलते हैं. तो ये जो हमारी मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं ये हमें अरेंज करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं इन मेन मेमोरी, in RAM. So that is the overall concept of multi-programming system. Multi-programming क्यों कर रहे हैं उसको अब हम सीखते हैं. उसके बाद फिर हम इस स्लाइड पर आएंगे, तब हमें जो भी यहाँ पर लिखा है बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगा what is the meaning of each and every line. So generally whenever any job or any process executes in a system, it performs two different kind of tasks. So either it is getting executed on CPU, so instructions of that process will be executed, or the process may perform some input output task. So at that time the process will not get executed. तो process जब भी एग्जीक्यूट होता है या तो वो सीपीयू के पास होगा या फिर वो कुछ इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहा होगा. एंड दिस इज द पिक्चर that represents the layout of main memory, that is our RAM. So you can see some portion of the RAM will always be occupied by operating system. Last lecture में बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ, whenever we switch on power on our computer system, सबसे पहले bootstrapping program run होता है, and the task is to locate and load the operating system into random access memory so that OS can provide the environment to the user for execution of some other programs. तो आप कभी भी अपने मोबाइल फोन का, अपने सिस्टम के, अपने लैपटॉप की रैम चेक करेंगे. सो इफ यू आर हैविंग 4 GB रैम इन योर मोबाइल फोन, तो वो कभी भी आपको कंप्लीट 4 GB नहीं शो करेगा. इवन अगर आपने कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म किया होगा, वो हमेशा आपको 3.79, 3.81 कुछ इस तरह की रैम विजिबल होगी. सिमिलरली इफ योर लैपटॉप कंसिस्ट्स ऑफ 16 GB रैम, तो वो हमेशा आपको 15.1, 14.9. सो व्हाट इज द रीजन? सो कभी भी हम पूरी रैम यूज कर ही नहीं सकते. हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स some of the space of our main memory, because we learned that each and every process which is required to be run must be in the main memory for execution. Without being loaded into main memory, we cannot execute any program, and operating system is also one of the program which keeps running all the times on the computer system. तो operating system तो हमेशा RAM में रहेगा जब तक हमारा computer system on रहेगा. So OS या तो लोअर मेमोरी लेता है हमेशा या अपर मेमोरी लेता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 512 MB की एक रैम है जिसका जो लोअर स्पेस है 0 से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर OS शिफ्ट हो गया. अदर देन दैट यू कैन सी देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस which wants to execute their task, and they are organized very well in the main memory. And this concept is known as multi-programming. So multi-programming means many programs, more than one process, more than one program in the RAM itself. So क्यों हम ऐसा कर रहे हैं इसको हम डिस्कस करते हैं. ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होता था कि अगर एक कोई भी प्रोसेस है, एक जॉब 1 है, प्रोसेस 1 है,
अगर वो सीपीयू को एलोकेट हो गया तो जब तक वो पूरा प्रोसेस अपना टास्क फिनिश नहीं कर लेता था, पूरा टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक वही प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करता रहेगा। अदर देन दैट और कोई भी प्रोसेस को सीपीयू रन नहीं करता था। सो ओवरऑल जो प्रोसेस था वो हमारा बहुत स्लो हो जाता था। बट नाउ यू कैन सी विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, OS organizes various different processes, various different jobs which are willing to execute on the CPU in the main memory. And suppose first of all जॉब वन अगर हमारी सीपीयू के पास पहुंच गई एग्जीक्यूट होने के लिए, सो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, एक ही सीपीयू है, एक टाइम पर एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। सो जॉब वन इंस्ट्रक्शंस विल गेट एग्जीक्यूटेड एट लेटर ऑन सम टाइम if job 1 requires to go for input output task, then operating system will not allow CPU to sit idle. CPU को खाली नहीं बैठने देना है। This is the major purpose of multi programming system. तो जैसे ही job 1 पहले CPU के पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही थी और बीच में जॉब 1 को कुछ काम आ गया और वो चला गया इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करने, सो CPU आइडल हो जाएगा। इतने में ही जॉब 2 को एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके पास, सीपीयू के पास, सो दैट आर सीपीयू विल नॉट सिट आइडल। नाउ यू कैन सी जैसे ही प्रोसेस 1 या जॉब 1 हमारी इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करने के लिए गई, साथ के साथ सीपीयू एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा जॉब 2 की, प्रोसेस 2 की इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज द ओवरऑल गोल, दिस इज द ओवरऑल मोटिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स। एक टाइम पर रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखो डिपेंडिंग अपॉन कितनी मेमोरी स्पेस है, और जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाए, जैसे ही सीपीयू अवेलेबल हो जाए, तो साथ के साथ मल्टीपल प्रोसेसेस को में से पिक करके सीपीयू को कोई ना कोई एक प्रोसेस हमेशा एग्जीक्यूट करता रहना चाहिए। तो हो सकता है इसके बाद वापस जो हमारा जॉब 1 है वो रैम में आ जाएगा। तो जैसे ही जॉब 2 सपोज टर्मिनेट हो गई, तो अगर इसको अपना कोई इनपुट आउटपुट परफॉर्म नहीं भी करना है तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो जैसे ये टर्मिनेट हमारी हो जाएगी तो साथ के साथ ओएस जो है वो वापस हमारा जो जॉब 1 है वो एलोकेट कर देगा सीपीयू को। जब हमारा जॉब 1 टर्मिनेट हो जाएगा तो ये रैम से बाहर चला जाएगा, देन जॉब 3 कैन बी एलोकेटेड टू सीपीयू एंड सो ऑन। जितने भी प्रोसेसेस हमारे विलिंग है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, रन होने के लिए, तो ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहेगा। तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द गोल ऑफ multi-programming? So the simplest goal, the most important goal is to maximize CPU utilization. CPU कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, उसके पास हमेशा एक जॉब, एक प्रोसेस होना चाहिए जो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहे। अगर CPU ही यूटिलाइज हम नहीं कर रहे, सो देयर इजंट एनी यूज, बिकॉज मेजर टास्क ही कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, प्रोसेस प्रोग्राम्स को रन करना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ multi-programming systems, to have more than one programs organized in random access memory in main memory, so that ड्यू टू एनी रीजन अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो इसमें से किसी भी प्रोसेस को ओएस पिक करेगा और सीपीयू को एलोकेट कर देगा, और सीपीयू फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो या तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, तब तो वो रैम से ही बाहर चला जाएगा, और हो सकता है इन बिटवीन वो प्रोसेस, वो जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला जाए। तो जैसे ही ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाएगा तो फिर ओएस इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में से नेक्स्ट या सेकेंड में किसी भी प्रोसेस को पिक करके सीपीयू को दे देगा। तो कौन सा प्रोसेस पिक किया जाता है वो हम सीखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में बड़ी ही डिटेल में। एंड आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रैम में रख लिया जाए ताकि सीपीयू को साथ के साथ
जैसे ही CPU फ्री हो, साथ के साथ हम इसमें से कोई भी एक टास्क, कोई भी एक प्रोसेस CPU को एलोकेट कर सके। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सब लोगों को। यस सर। ओके चलो, तो एक जैम बोर्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सेम पिक्चर मैंने यहाँ पर कल बनाने की कोशिश की थी। मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग को समझेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल, दिस इज आवर रैम एंड देयर आर सम प्रोसेसेस और सम प्रोग्राम्स इनसाइड मेन मेमोरी। तो यही हमारी क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। मोर देन वन प्रोग्राम्स sitting in the RAM waiting for their execution at CPU, and the processes may be either at CPU or they may perform some input output activity। तो बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है, CPU कैन बी एज्यूम्ड एज अ डॉक्टर। सो एक ही डॉक्टर है क्लिनिक में, processes are different different patients and they are waiting for doctor, and RAM is just like the waiting room, and input output task is just like performing some kind of test. It can be x-ray or it can be CT scan or anything else। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले हम P1 को अलॉट कर सकते हैं। तो P1 अगर पहुंच जाएगा डॉक्टर के पास तो हो सकता है वो अपना कुछ डिस्कशन यहाँ पर करेगा। उसके बाद हो सकता है डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट बोल दे कि एक्सरे करा के आओ, तो P1 चला जाएगा यहाँ। सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपली सेज, जैसे ही प्रोसेस P1 गया इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करने, नेक्स्ट कोई भी एक प्रोसेस जो है वो P2 को कर दो, CPU को कर दो एलोकेट, सो दैट CPU कोई ना कोई जॉब को परफॉर्म करता रहे। सो एक ही डॉक्टर है, मींस वी हैव सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जैसे ही CPU हुआ आइडल, OS ने पिक करना है रैम में से कोई एक प्रोसेस और एलोकेट कर देना है CPU को। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस स्लाइड पर चल के दोनों का अलग से मीनिंग देखते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। सो दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर वी कैन हैव multiple processes organized in a RAM, and the motive is to maximize CPU utilization। जैसे ही CPU आइडल हो, इसमें से कोई भी एक जॉब OS पिक करेगा और CPU को दे देगा। तो CPU के पास हमेशा कोई ना कोई एक टास्क, कोई ना कोई एक प्रोसेस हमेशा होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। CPU कभी भी आइडल नहीं होगा, हम मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जो बेसिकली जो हमारा मल्टीटास्किंग है, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टीटास्किंग में कुछ नया, कुछ डिफरेंट नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सपोज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, there are some processes P1, P2, P3, P5, P7, and suppose P1 सबसे पहले डॉक्टर के पास गया, उसके बाद वो टेस्ट कराने चला गया, इतने में फिर P2 CPU के पास आया, फिर P2 भी टेस्ट कराने के लिए चला गया, इतने में P1 वापस यहाँ वेटिंग रूम में पहुंचा। तो डॉक्टर ने कहा भी जिसको टेस्ट कराने के लिए बोला गया था उसी पेशेंट को वापस भेजा जाए। तो P1 से फिर से डिस्कशन स्टार्ट हुई CPU की, मींस P1 की इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूट हुई, और फिर P1 को कुछ और टेस्ट के लिए दोबारा भेज दिया गया, इतने में P3 आया। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट कि ये जो P7 यहाँ पर बैठा हुआ वेट कर रहा है, इसे नहीं पता इसकी बारी कितनी देर के बाद आएगी। तो हो सकता है ये सुबह 10 बजे क्लिनिक में आके बैठ गया हो और डॉक्टर अभी इन्हीं 4 पेशेंट से ही बार बार डील कर रहा है, इधर इनकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर ये इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ से फिर वापस ये वेटिंग में आते हैं, तो डॉक्टर पहले बोलता है कि जिनका टेस्ट कराने के लिए बोला गया था उन्हीं की रिपोर्ट्स दिखाओ, पहले मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो ये जो पेशेंट P7 है ये वेट ही करता रह जाएगा। तो हो सकता है कि 10 बजे आके इसकी बारी शाम को 4 बजे आए, और तब तक जो CPU है वो P1, P2, P3, P5 की इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करता रहे। So this is one of the drawback which we can assume in the case of multi-programming system। and mainly जो multitasking है,
वो मल्टी प्रोग्रामिंग की इसी डिसएडवांटेज को रिमूव करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो मल्टीटास्किंग, डॉक्टर विल से I will give fixed time to each and every patient at once। तो डॉक्टर ने अपना टाइम फिक्स किया कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी पेशेंट को नहीं देने वाला। तो सबसे पहले P1 अगर एग्जीक्यूट होता है तो P1 क्या करेगा, P1 गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने 10 मिनट इसकी बात सुनी। तो हो सकता है पहला केस कि पेशेंट को बात ही 10 मिनट से कम करनी हो, दैट इज ओके। तो ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया एंड आफ्टर दैट इट विल जस्ट लीव द रैम, वेटिंग रूम क्लिनिक से चला जाएगा। लेकिन कई बार हो सकता है कि पेशेंट को बात थोड़ी ज़्यादा करनी हो या फिर 10 मिनट के बाद डॉक्टर ने उसको बोल दिया हो कि टेस्ट कराने चले जाओ, तो P1 यहाँ चला गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड आफ्टर दैट doctor calls the second patient P2। But main thing is multitasking is that multitasking systems are also known as time sharing systems। CPU ने अपना एक टाइम फिक्स किया कि मैं एक बार में एक पेशेंट को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, चाहे कोई भी उसको बात करनी हो, चाहे उसे 15 मिनट की बात करनी हो। तो पहले मैं 10 मिनट ही सुनूंगा, 10 मिनट होते ही या तो मैं उसको भेज दूंगा वापस वेटिंग रूम में या फिर उसको इनपुट आउटपुट टास्क के लिए भेज दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट पेशेंट P3 को कॉल करूंगा 10 मिनट के लिए, फिर P5 को कॉल करूंगा 10 मिनट के लिए, फिर P7 को भी कॉल करूंगा 10 मिनट के लिए। जब P7 के 10 मिनट पूरे हो जाएंगे फिर उसी सीक्वेंस में अगर किसी भी पेशेंट को कोई बात करनी है मुझसे तब वो दोबारा आके मुझसे मिल सकता है। सो दिस इज द अप्रोच विच इज फॉलोड इन द केस ऑफ मल्टीटास्किंग। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या एडवांटेज हो गया मल्टीटास्किंग के केस में एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग, एनीवन? Sir, all the processes are covered. ओके, वेरी गुड। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग। जो हमें मल्टी प्रोग्रामिंग की डिसएडवांटेज मिल रही थी कि सीपीयू 2-3 प्रोसेस में ही उलझ सकता है, इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो सकता है कि ये जो P7 यहाँ पर 10 बजे से आकर वेट कर रहा है इसकी बारी बहुत देर में आए। लेकिन मल्टीटास्किंग क्या कहती है, सारे के सारे प्रोसेस को 10-10 मिनट का ही टाइम मिलेगा। सो मेन थिंग, मेन टर्म हेयर इज रिस्पॉन्स टाइम। सो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम इज दैट टाइम व्हेन सीपीयू गिव्स एग्जीक्यूशन या टाइम टू एनी प्रोसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार जब सीपीयू पर कोई भी प्रोसेस जाता है, सो दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम, कितनी जल्दी सीपीयू ने रिस्पॉन्स किया उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सो मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में P7 को बहुत देर वेट करना पड़ सकता है, बट in the case of multitasking, if CPU has fixed time for 10 minutes तो वही P7 को पक्का पता है कि मेरे से पहले अगर 4 पेशेंट बैठे हैं तो 10-10-10, 20-30-40 मिनट्स के बाद मेरी टर्न पक्का आएगी। एक बार डॉक्टर मुझसे बात जरूर करेगा 10 मिनट के लिए। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग सिस्टम्स ओवर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑल्दो कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर भी हम एक टाइम में रैम के अंदर बड़े सारे प्रोसेसेस को ओएस ऑर्गेनाइज करके रखता है, लेकिन मेजर डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग इज एक प्रोसेस अगर सीपीयू के पास गया वो जितना मर्जी टाइम ले सकता है। हो सकता है P1 पहले ही बार में ही जाकर सीपीयू के पास आधा घंटा डिस्कशन करता रहे, उस आधे घंटे के बाद डॉक्टर इसको कहे कि टेस्ट करा के आओ, तब P2 की बारी आएगी और फिर P2 से डिस्कशन जो P2 को भी टेस्ट के लिए बोल दिया जाए, फिर P3 सीपीयू के पास होगा, इतने में P1 टेस्ट कराकर वापस वेटिंग रूम में होगा। तो कंपाउंडर बोलेगा कि P1 और P2 को भेज दो, जिनको टेस्ट कराने के लिए बोला गया था उनकी क्या रिपोर्ट आई है, पहले डॉक्टर उस पर डिस्कशंस करेंगे। मींस जब तक कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं हो रहा तब तक सीपीयू या डॉक्टर उसी से डील करता जा रहा है नेक्स्ट पेशेंट की टर्न कब आनी है। मल्टी प्रोग्रामिंग में वो कंफर्म नहीं है। But in the case of multitasking, each and every process knows कि इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद डेफिनेटली उस प्रोसेस की टर्न आएगी, वो इतनी देर के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट डेफिनेटली होगा। सो सभी प्रोसेसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा और सभी प्रोसेस यही चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो, हम सीपीयू पर जितनी जल्दी हो सके अपने टास्क को फिनिश करें। सो
आई होप डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग इज वेरी मच क्लियर। जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, सभी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं और डिटेल में इसको और डिस्कस करूंगा। पहले एक बार स्लाइड को देख लेते हैं वो क्या कहती है रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स। So multi-programming and multitasking. Multi-programming is needed for efficiency. A single user cannot keep CPU as well as input-output devices busy at all times. So what multi-programming do? Multi-programming organizes all the jobs so that CPU always has one job to execute, one task to execute, and no doubt सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। तो मेमोरी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। रैम की अगर हम बात करें तो हम सारे के सारे प्रोसेसेस को तो नहीं रख सकते, कुछ सबसेट ही हम एक टाइम पर मेन मेमोरी के अंदर लेके जा सकते हैं। तो जो भी प्रोसेसेस विलिंग हैं, टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ओएस उनको पिक करके यहाँ मेन मेमोरी के अंदर अरेंज कर देता है और वन बाय वन सीपीयू को एलोकेट करता रहता है। जैसे ही सीपीयू आइडल हुआ, एक जॉब पिक की, सीपीयू को दे दी। जैसे ही सीपीयू आइडल हुआ, नेक्स्ट जॉब पिक की, वो सीपीयू को दे दी। सो दिस इज the task of OS and one job selected and run via job scheduling। तो CPU शेड्यूलिंग को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो क्या एल्गो यूज करता है OS इफ आई एम हैविंग 4 जॉब्स हियर, तो इसमें से कौन सी प्रोसेस, कौन सी जॉब को CPU मिलेगा, तो उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स होती हैं। तो उसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं कि जॉब 1 को कितनी देर का काम है CPU के पास। अगर ये 10 मिनट के लिए बात करना चाहती है, ये 7 मिनट के लिए बात करना चाहती है, ये 2 मिनट के लिए इसको डॉक्टर से मिलना चाहता है, तो एक एल्गो ये हो सकती है कि जिसको सबसे कम टाइम चाहिए सबसे पहले उसे ही सीपीयू को दे दो, वो जल्दी फ्री हो जाएगा, बाकी सबका नंबर भी बड़ी जल्दी आ सकता है। तो बड़े सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ओएस डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम्स, जो हमारी लैब का पार्ट भी है, एफसीएफएस है, एसजेएफ है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है। तो वो सारी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लाइन वही लाइन, कोई भी प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करने गया तो ओएस साथ के साथ इसी जॉब पूल में से, इन्हीं सेट ऑफ जॉब में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके फिर से सीपीयू को दे देगा, सो दैट सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए। दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेज क्या है मैंने आपको डिस्कस किया। कोई भी प्रोसेस जितनी मर्जी देर तक एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हो सकता है कि सबसे लास्ट में जो प्रोसेस है, बड़े सारे प्रोसेस अपनी टर्न का वेट कर रहे हो, उनको सीपीयू बड़ी लेट मिले या फिर ना मिले। टाइम शेयरिंग की बात करें या मल्टीटास्किंग की बात करें, तो मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। एंड बेसिकली ये एक एक्सटेंशन ही है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच की, in which CPU switches jobs so frequently that users can interact with each job while it is running, and that creates interactive computing। तो यहाँ पर तो जो हमने एग्जाम्पल लिए, मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझा दिया कि मल्टीटास्किंग में डॉक्टर 10-10 मिनट दे रहा है। तो अगर हम अब कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो 10 मिनट का टाइम नहीं है, लेस देन 1 सेकेंड, मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स के लिए एक प्रोसेस सीपीयू के पास जाता है, इतने में स्विच करता है, फिर P2 आ जाता है, इतने में स्विच करता है, वापस रैम में जाता है, फिर P3 को पिक करता है, फिर इसको स्विच कर देता है, P5 को पिक करता है, इसको स्विच करता है, फिर P7 को पिक करेगा सीपीयू और इसको स्विच कर देता है। तो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम इतना लेस होता है, इतना लेस होता है सीपीयू का, कि हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि भाई सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट सच्चाई क्या है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, एक ही सीपीयू है भाई, एक टाइम पर तो यहाँ पर या P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, या P5 या P7 हो सकते हैं। बट कंप्यूटर सिस्टम मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिप्स आप लोगों ने सुना होगा, तो सीपीयू एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है, इतना फास्ट हमारा सीपीयू है। तो यहाँ पर जरा हम डॉक्टर को भूल जाएं और सीपीयू को अगर जरा सोचें, तो हर प्रोसेस लेस देन सेकंड के लिए सीपीयू के पास जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी, ये वापस स्विच करेगा, P2 जाएगा, ये स्विच करके वापस आएगा। तो जितनी भी जॉब्स, अगर मैंने यहाँ पर
गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, वर्ड फाइल ओपन की हुई है, तो ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं। और आप देख सकते हो भाई मैं गूगल क्रोम के साथ वर्ड पे फाइल काम कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चला सकता हूँ। तो एक्चुअल में सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में ये हो कैसे रहा है सब कुछ? बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग, बिकॉज सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम इतना लेस है कि हम देख के बता ही नहीं सकते भाई एक टाइम पर तो सिर्फ वर्ड फाइल ही एग्जीक्यूट हो रही है, एक टाइम पर तो सिर्फ सॉन्ग ही चल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम सीपीयू का इतना ज़्यादा फास्ट होता है, शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में होता है। तो जितनी भी यहाँ पर रैम के अंदर प्रोसेसेस हैं, ये एक्चुअल में कंप्यूटर यूजर को ऐसी अपीयर होती है भाई ये पांचों के पांच प्रोसेसेस इकट्ठे रन हो रहे हैं। मैंने वर्ड फाइल भी ओपन की हुई है, मेरे बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, मैंने कैलकुलेटर भी ओपन किया हुआ है, मैंने नोट पैड भी ओपन किया हुआ है। तो ये सारे प्रोसेसेस यूजर को अपीयर होंगे कि साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं। बट द ट्रुथ इज इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम वी हैव ओनली वन सीपीयू। तो एक टाइम पर एक्चुअल में इनमें से एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, बट स्विचिंग इतनी फास्ट है, रिस्पॉन्स टाइम इतना फास्ट है सीपीयू का कि यूजर को कभी पता ही नहीं चलता कि भाई एक टाइम पर तो एक ही चल रहा है, लेकिन यूजर कहता है कि नहीं मैं तो गेम भी खेल रहा हूँ और मेरे पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, या फिर मेरे सॉन्ग्स चल रहे हैं, मैं साथ में एमएस एक्सेल पर कोई साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। सो दैट इज वाई इट्स पॉसिबल इन द केस ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे हम यूनिक्स की बात करें, चाहे हम लिनक्स की बात करें, या फिर हम विंडोज एंड मैक की बात करें। सो ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोज और सपोर्ट्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, जहां पर सीपीयू ने फिक्स कर दिया भाई मैं एक प्रोसेस को 1 मिली सेकेंड का टाइम दूंगा, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करते ही वापस रैम में नेक्स्ट प्रोसेस पिक किया, उसको 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को पिक किया, उसको 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया, एंड दिस इज हाउ दिस सिनेरियो ऑफ मल्टीटास्किंग डन इज डन। एंड टाइम शेयरिंग नाम से आपको पता चल गया कि सभी प्रोसेसेस के लिए टाइम शेयर किया है, डॉक्टर ने सभी पेशेंट्स के लिए टाइम निकाला है कि मैं 10-10 मिनट सबको दूंगा, मैं किसी भी पेशेंट को वेट नहीं कराऊंगा बहुत देर तक अपने क्लिनिक में। सो ईच यूजर हैज एटलीस्ट वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन मेमोरी and that is known as process, and if several jobs ready to run at the same time then CPU scheduling। तो CPU scheduling मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ। तो इनमें से अगर ये चारों प्रोसेस रेडी हैं सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो इनमें से कौन से प्रोसेस को ओएस सेलेक्ट करेगा सबसे पहले, तो वो डिसाइड होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो की हेल्प से। ओएस का काम है, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल अगर हम समझें तो ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हम कभी भी नहीं बता पाते कि एक ही प्रोग्राम चल रहा है सिस्टम में। सिर्फ ओएस को पता है ये बात क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है, अब हमें भी पता है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने सिस्टम पर 4-5-10 प्रोसेसेस इकट्ठे चला लोगे, तब भी आपके लिए वो सारे साइमल्टेनियसली ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज these operating system supports multitasking. If process doesn't fit in memory, swapping moves them in and out to run। तो हो सकता है मेन मेमोरी कभी कभी लिमिटेड हो जाए, तो उस केस में हम स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो स्वैपिंग बेसिकली हम बोलते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हम रैम में लेके आएंगे, या फिर जो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है सीपीयू के पास वो रैम से वापस चला जाता है वापस, तो कुछ स्पेस अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9। तो ये हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के केस में बड़ी डिटेल में, वर्चुअल मेमोरी। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है। एंड अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने सिस्टम पर एक टाइम पर इतने सारे टास्क एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग मींस मैंने एक टाइम पर वर्ड फाइल भी ओपन किया है, बैकग्राउंड में सॉन्ग भी चल रहा है, नोटपैड भी ओपन है, एक्सेल फाइल भी ओपन है, मैंने इंटरनेट के लिए गूगल क्रोम भी ओपन कर रखा है। सो मल्टीटास्क मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज माई ओएस प्रोवाइड्स मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, मल्टीटास्किंग अप्रोच टू माई सिस्टम। लास्ट